Okay, Namo Buddhaya, Jai Bhim. Today, this period is very important because it's marked the Vesak Day. Vesak Day is the day that the Lord Buddha birth, enlightened, and parinirvana. Parinirvana is mean leave the body, and Dhammakaya Buddha go to nirvana. So it's our great honor to participate in the big Sanghadana in Bodh Gaya, where the Lord Buddha enlightened here. So this is the auspicious and very important. That's why I Venerable Dr. Ponchai Parawatamo, President of World Alliance of Buddhists from Thailand, we come for participate this auspicious program in Bodh Gaya because Vesak Day celebration Buddha enlightened, and this is the enlightened face of the Lord Buddha. So, and today we are happy to offer the Sanghadana to many monks, or Nikaya, Theravada, Mahayana, and Vajrayana who stay in India and Bodh Gaya. Right now, Buddha Jayanti, and we are celebrated here. And what you see in Bodh Gaya, and what you want to say about the Bodh Gaya? I Buddha Jayanti mean the victory of the Lord Buddha. So that means the Lord Buddha enlighten and eliminate the defilements in and know the way how to make people free from suffering uh, and get the happiness until nirvana. So Buddha Jayanti and the Vesak Day in each country is different. So that means we celebrate the Vesak Day every year about 2 months, May and June, or April also. Mahayana, what Theravada counted by lunar month, Vajrayana, what Mahayana counted by uh, by the sun. Saturday's second Sunday of May, that is Vesak Day. So Buddha Jayanti that we celebrate to pay homage to the Lord Buddha for his enlightened, his birth and his parinirvana. Because of Buddha, the teaching of the Lord Buddha spreading all over the world, and Thailand get the benefit from the teaching of the Lord Buddha. So this is we celebrate Buddha Jayanti. As And you know, we do for best humanity, peace is a very good thing. But right now, whole world and the countries fighting, war is going. And as a Buddhist, as a Bhante, and whatever you, as a religious person, what is the message you will give to the whole world? I think the conflict or the war starting from the mind of the people, especially the leader. If their mind is good, peaceful, or they get the inner peace, inner happiness. So mind is the master, and the mind is everything. If the mind good and the mind get the inner peace, they can share peace to the outer or the world. So if the mind don't peaceful, they think another way. So I think for the whole world, we would like to make world peace, but we should start from inner peace. World peace should come from inner peace. So start from ourselves, from each person. If we practice for ourselves first, for and then we get the inner happiness, inner peace, we can share to the friends around us, and the friend can share to the community. Community can share to the district and can share to state, to the country, and at last to the world. So if we start from each person practice of the mind to find the inner peace, we can starting from mind, one mind, and then can make the world peace. World peace should come from inner peace. I saw many people come to Bodh Gaya because they respect to the Lord Buddha.
Indian people and international Buddhists. So this is very important because enlightened place is very important for Buddhist people around the world. When they come here, they get the positive energy from the Bodhisattva because they believe in the Lord Buddha. They believe in the wisdom, the power of the triple gem. So when they come here, they feel that they get the positive energy and merit from Bodhisattva, from their mind. Myself, as I say that I myself am Venerable Dr. Ponchai Palawatamo. Before I be a monk, I be medical doctor before, and then I ordained to be a Buddhist monk. Now I am president of the Alliance of Buddhists. We have the members about 20 countries from 40 organizations, 50 organizations. 2 मई 2026 बोधि पवित्र भूमि बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे में बनते हर्षवर्धी के द्वारा पावन पवित्र बुद्ध जयंती उद्यापन किए थे। तो वहाँ काफी संख्या में बौद्ध भिक्षु थे जो अलग अलग परंपरा के थे। कोई महायाना के थे, कोई वज्रायना के थे, कोई तंत्रायना के थे, कोई थेरावाद के थे, अर्थात कोई श्रीलंका का है, कोई इंडिया का है, कोई म्यांमार की है, कोई थाईलैंड की है। तो इस मौका को साल में एक बार हम लोग को मिलते हैं बौद्ध भिक्षु के रूप में, और उसको जो श्रद्धालु होते हैं हमारे, जो बौद्ध धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं, वो लोग आते हैं। उसी के आस करीब करीब हम लोग सेलिब्रेट किया है बौद्ध वृक्ष को नीचे। विशेष इस मौके पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, ये जरूर है, बौद्ध होने के नाते देश के कोने कोने से या देश के बाहर से हमारे जो बौद्ध श्रद्धालु है आते हैं, लेकिन ये भी जरूर है कि इस बात पर जोर देने का, क्योंकि जितना भी दुनिया में रिलीजियन है सब अपना अपना इंडिपेंडेंट एंटिटीज है, उसकी अलग अलग पहचान है, और हम भारत में जो बौद्ध है वो माइनॉरिटी के रूप में पहचान जाता है। तो ये महाबोधि मंदिर जो बोध गया टेम्पल एक्ट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, या उसको बिहार सरकार के द्वारा उसको संचालित करते हैं। तो उस एक्ट में जो कमियां हैं, कहाँ ना कहाँ इस तरह का वातावरण में तो लोगों के बीच में मन आता ही है कि बिहार सरकार इसको कब संशोधन करेंगे, अमेंडमेंट कब लाएंगे, जो बौद्ध लोगों का लंबी समय से मांग है। ये अभी जिस प्रकार से बुद्ध जयंती में देखा गया, इस बार बुद्ध जयंती से पहले लोगों का मुझे लगता है ऐसा कि जिस प्रकार से भीड़ की अगर बात करें, जैसे लोग पहले आया करते थे, उस हिसाब से अब भीड़ आना कम हो गया। इसके पीछे आप लोग क्या रीजन समझते हैं, क्या विचार? देखिए, इस बार मैं ये समझता हूँ कि असली अगर इंडिया के बाहर थोड़ा सा हम लोग मिडल ईस्ट में जाए, तो मिडल ईस्ट में जिस तरह का हालात वहाँ वो आया है, जिसके वजह से यहाँ भी भारत में तो भारत की जो पब्लिक के सामने इकोनॉमिक लाइफ काफी हार्ड हुआ है, काफी उसमें संघर्षशील हुआ है। तो जिसके वजह से हमारा श्रद्धालु भी महाराष्ट्र से या आपका मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से या बंगाल से या आसाम से बहुत कम ही लोग आ पाया है। ये भी एक कारण हम मानते हैं। पहले सभी चैनल के जितने भी दर्शक है उनको मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। इस बार बुद्ध जयंती जो 2570वीं जो बुद्ध जयंती पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनती है, लेकिन जहाँ सिद्धार्थ कुमार गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया, दुनिया को शांति का संदेश दिया, उसी बोधि वृक्ष के नीचे आज दिनांक 2 मई 2026 को बुद्ध जयंती के अवसर पर विशेष पूजा का और संगदान का आयोजन किया गया। हालांकि ये संगदान का कार्यक्रम 1 तारीख को होना था, लेकिन किसी कारणवश या मान के चलो कि बिहार के मुख्यमंत्री का आगमन होना
उसके वजह से बीटीएमसी के द्वारा उस दिन कार्यक्रम संभव नहीं हुआ, लेकिन आज के दिन में कार्यक्रम हुआ। हमें बहुत खुशी हुई। हर कंट्री के मॉन्क थे, महायानी थे, थेरावादा भी थे, म्यांमार के थे, थाईलैंड के थे, कंबोडिया के थे, वियतनाम के थे, भूटान के थे, तिब्बत के थे, लाओस थे। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में थाईलैंड से डॉक्टर पोंचाई भंते जी आए प्रमुख अतिथि के रूप में। माननीय भदंत प्रियपाल जी अध्यक्ष थे। माननीय भीमराव जी हती आंबोरे जो समाज डॉक्टर समाज भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य, माननीय डॉक्टर मिथाली, ये सब लोग आए और मेरे आयोजन में ये अच्छी तरह से कार्यक्रम हुआ। सब भिक्षु सुबेरे पूजा पाठ की गई। फिर बाद में भंते जी को अशोक सम्राट राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। माननीय भीमराव जी हती आंबेरे जी को कनिष्ठ सम्राट से अवार्ड किया गया। और जिन लोगों ने महाराष्ट्र के जो बुद्ध उपासक उपासिका है उन्होंने जो डोनेट किया उनको अनाथ पिंडी का अवार्ड किया गया। डॉक्टर मिताली जी को संघमित्रा थेरी संघमित्रा का अवार्ड प्रस्तुत किया गया। एक हमारे महाराष्ट्र से ही भीमराज वाइवर उनको भी अनागरिक धम्मपाल का अवार्ड दिया गया। तो इस तरह से आज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 11 बजे तक पूरा शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम हुआ, पूजा पाठ हुआ, कुछ मार्गदर्शन हुए और संगदान देकर फिर 11 बजे पूजियागिरी होटल में भिक्षु को संगदान हुआ और बुद्ध जयंती हम लोगों ने मनाए। हालांकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हमको मनाना था, लेकिन मैंने पहले ही पूर्व बताया कि इस वजह से हम लोग आज कार्यक्रम हुआ। उसके वजह से परिणाम ये हुआ कि जो निमंत्रित लोग थे गेस्ट, जैसे सुरेश कैट जी, तो कल आना था तो कैंसिल होने के कारण उनका भी आना संभव हुआ, उनको भी मैसेज गया। तो ये थोड़ा सा, और इस बार मुझे लगता है बुद्ध जयंती चंद्रकांत हंडोरे जी वो भी आने वाले थे, उनका ऑलरेडी रिस्पॉन्स लेटर आया, लेकिन ये 1 तारीख को कैंसिल करने से वो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा बीटीएमसी के द्वारा। तो ठीक है, हम लोग अभी बाउंक से भिक्षु है, क्या कीजिए, उनके सीएम का आगमन होना और फिर दूसरे दिन बीटीएमसी में कार्यक्रम होना और बुद्धि रूप समय ये भी हमारे लिए बहुत कुशल कर्म ही मानते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि बुद्ध जयंती के अवसर पर पूरे भारत से लोग कम हुए हैं। इसका परिणाम यह है कि अभी युद्ध चल रहा है और युद्ध चलने के वजह मुझे लगता है ट्रेन आना जाना बहुत कम किया है, तो इस बार लोग नहीं आए। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में करीबन 1200-1300 मांग थे और काफी उपासक लोग थे। और मैं एक आयोजक होने के नाते इतना ही संदेश दूंगा बुद्ध गया के लोगों को कि हम लोग अगले साल पंचायत सब लोग मिलकर बड़े धूमधाम से बुद्ध जयंती मनाएंगे, क्योंकि बोध गया में जो जयंती हो रही है वो जयंती एक औपचारिकता हो रही है। हम चाहते हैं कि बुद्ध ने हमको ज्ञान दिया, बुद्ध ने हमको शांति का मार्ग दिया, तो बुद्ध गया की धरती पर 8 दिन के लिए, थाईलैंड के लिए 1 दिन होगा, श्रीलंका के 1 दिन, महाराष्ट्र के लिए 1 दिन, ऐसे दिन से 8 दिन मनेगी बुद्ध जयंती और बुद्ध का संदेश लोगों को तक जाएगा। तो बुद्ध गया की धरती पर जो बौद्ध लोग रहते हैं, जो अन्य धर्म के लोग रहते हैं कि हाँ भाई ये बुद्ध का संदेश है, ये बुद्ध का मार्ग है, तो लोग जुड़ेंगे और अपने आप में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमने आज तय किया है कि नेक्स्ट टाइम इससे भी थाईलैंड हो, म्यांमार हो, सभी कंट्री के लोग मिलकर अच्छे तरह से जयंती मनाएंगे, त्रिविध पावन जयंती। आज की आयोजित सभा में कितने देश के लोग? आज मुझे लगता है करीबन श्रीलंका के भी थे, थाईलैंड के भी थे, वियतनाम के भी थे, भूटान के थे, तिब्बत के थे, म्यांमार भी थे, एक ऑस्ट्रेलिया के भी भंते जी थे, जापान के भी भंते जी थे, तो कई 10-15 देश के भिक्षु थे और महाराष्ट्र से थे, बिहार भी थे। पुरानी शासन से कई सालों से वो काम कर रहा है, वो भी खत्म नहीं है, हो गया। और दीक्षा भूमि में तो ऑलरेडी काम हुआ है। तो ये सरकार जो है, सरकार बुद्ध धर्म को, भारतीय जनता पार्टी की तो आइडियोलॉजी है, हिंदू आइडियोलॉजी है, तो बुद्ध धर्म को बढ़ने नहीं देती।
मैं 3 दिन से बुद्ध गया में हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ यहाँ पूरे वर्ल्ड के प्यारे बुद्ध तो यहाँ बैठे हैं बिहार में, बुद्ध गया में, पर बिहार के लोगों को उतने प्यारे नहीं। बिहार की जनता लोग जो है, मैं सभी को तो इन्वॉल्व नहीं करता, वो बहुत सारे लोग हैं जो टूरिज्म आ रहे, वो क्या दे रहे वही देते। बुद्ध की धरती से उनको क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। इधर ये सब बुद्ध जयंती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पूरा बुद्ध गया शहर में सजावट होना चाहिए जैसे बुद्ध की जयंती है। बुद्ध ने ज्ञान दिया, और अभी आपने भी बोला अभी कि इतना भी युद्ध हुआ तो लास्ट का सवाल तो बुद्ध की तरफ ही जाना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को जाना ही उधर। क्योंकि आज ट्रम्प भी बोल रहा है कि मैं तो एक दिन में ईरान को, आज मैं पढ़ा, ईरान को ख़त्म करना चाहता कि मैं, मगर मेरे दिल में प्यार है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो प्यार कहाँ से आया है? प्यार की परिभाषा तो बुद्ध से है ना। तो ये बुद्ध की धरती से, जैसा इंडिया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये बिहार स्टेट दोनों ने मिल के बौद्ध गया में एक सप्ताह भर का बुद्ध जयंती का महोत्सव करना चाहिए। देश विदेश के जो एम्बेसडर है उनको बुलाना चाहिए। हाँ भाई, हम तो बाहर जाके बोले हैं कि हम बुद्ध की धरती पर, इसीलिए बुद्ध की धरती पे तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बोध गया कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है, फंड मिल गया है, होने जा रहा है। कल ही मुख्यमंत्री बोले हैं कि 1 महीने के अंदर मैं चालू करा दूंगा। तो बोध गया का तो विकास के लिए नहीं, तो आप गए होंगे तो बाजू में क्या वो कौन सी डूंगेश्वरी केव्स, उसको केबल कार का काम कम से पड़ा है। हाँ, रुका हुआ है। लेकिन अब कॉरिडोर के अंतर्गत देखिए क्या क्या होता है। अभी जो नई सरकार जो बदली है, हाँ, उस सरकार की जो कह रहे हैं, उसके सीएम कल आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कल उन्होंने खुला मंच से ऐलान किया है कि 1 महीने के अंदर यहाँ काम शुरू कर। उसका तो हम स्वागत करते हैं, बड़ी बात है। मगर ये केबल कार, आप कल जो बुजुर्ग लोग हैं, दुख काले के दिन में ऊपर चढ़ नहीं सकते ना, दर्शन से वो परिग रह जाते हैं। तो हाँ, वो योजना बहुत दिन से चल रही हो नहीं, मूर्त रूप ले रहा है। ऐसा है। और एक गवर्नमेंट चाहती तो गवर्नमेंट के पास मिलिट्री का वर्क है, 2 दिन में खड़ा कर सकते हो। आप किस परिदृश्य में बोध गया के विकास किस तरह का देखना कैसे चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, ताकि आपकी भावना को सरकार और समाज तक पहुंचाया जा सके। जैसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे अपन जाएंगे उधर, तो रास्ते होने चाहिए। बौद्ध गया के मंदिर के आजू बाजू में जो बेचारे गरीब है उनको हटाना, उनको अच्छा डेवलप करके अच्छी जगह देके मंदिर का परिसर अच्छा बनाना चाहिए कि कि लगे कि इधर साफ सुथरा सौंदर्य वर्ल्ड हेरिटेज है। भगवान हाँ आपन देखा कि भारत में बुद्ध धर्म कम है, मगर पूरे वर्ल्ड में बुद्ध धर्म वेलकम जो जहाँ की भगवान बुद्ध गए भी नहीं वर्ल्ड सबसे तो उत्तर। ये सारी भारत सरकार की और बिहार सरकार की इच्छा होनी चाहिए कि इस पवित्र स्थल को विकसित किया जाए। मैं डॉक्टर भीमराव हत्याम्बरे, मैं महाराष्ट्र हूँ, संबोधि एकेडमी महाराष्ट्र बोल के मेरा